Hello everyone. Welcome to second episode of Heard Unheard Season 1, a virtual open mic initiative by Lose Emotions. Lose Emotions is essentially an expression platform jointly founded by my friend Sakshi Agrawal and I. And Heard Unheard is Bhagalpur's first virtual open mic initiative by us. Today we have with us Mr. Tattvabodh Arya. He is a writing enthusiast and the founder director of Tattvabodh Fitness Town. He was also associated with many national level poetry associations. We welcome you, Tattvabodh. May I now request you to present what you have with you today? Okay, thank you, Umesh Ashu Mishra and Team Lose Emotions for bringing me on board. Actually, before beginning with anything as such, I would definitely like to talk about the initiative you people have taken forward. It's great to see the kind of platform creation you people have been into, and it's great to see people joining, connecting with you on Instagram, on YouTube, and other handles that you people you operate with. So it's like I think it's a handy platform for people of Bhagalpur to connect and get an opportunity to present themselves. As it's like turning the stuffs into global because YouTube is a very global platform. So with that in action, I would like to congratulate your team on behalf of every Bhagalpuri around to take the things a little more further step ahead and bringing things on board for every Bhagalpuri. Thank you. And that makes me you can say even more uplifted because the poem I'm going to talk about in reference to is about the home city Bhagalpur, which we both hail from. Majority of your viewers and my people hail from. So without wasting a single minute of yours and mine as well, so I'll definitely stick into the direction and begin with the poem. So it's the first paragraph that extends up. It's not the part of the poem. It may give you a little bit of background of what the poem is. So shall I continue? So shall I start? Yeah, sure. Thank you. So it goes like, इल्तिजाओं के फसानों में गुमनाम होकर बस ढलता रह गया. इल्तिजाओं के फसानों में गुमनाम होकर बस ढलता रह गया. मैं खुद के ही जज्बातों की जंजीरों से बंधकर मचलता रह गया. इल्तिजाओं के फसानों में गुमनाम होकर बस ढलता रह गया. मैं खुद के ही जज्बातों की जंजीरों से बंधकर मचलता रह गया. लगा जैसे कि कोई खूबसूरत सा ख्वाब टूट रहा. लगा जैसे कि कोई खूबसूरत सा ख्वाब टूट रहा हो. मैं मदमस्त आगे बढ़ता रहा. मेरा शहर पीछे छूटता रह गया. तो इसके बाद आई डायरेक्टली गेट टू द पोएम विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट. तो ये पोएम जो है वो सभी भागलपुरी के लिए है. जितने भी लोग भागलपुर छोड़ करके बाहर जा रहे हैं, मे भी एजुकेशन के लिए, जॉब के लिए, वो क्या फील करते हैं, तो मैंने उनके इमोशंस को पेन डाउन करा है. यूं तो हर रोज तेरी गलियों में आना जाना ना हो पाएगा. यूं तो हर रोज तेरी गलियों में आना जाना ना हो पाएगा. वो शाम की महफिल, वो चौक का कॉफी शॉप अब ठिकाना ना हो पाएगा. शहर के रास्ते अब मेरे लिए अनजाने से हो जाएंगे. जिन गलियों में सब कुछ गुजरा वो भी थोड़े बेगाने से हो जाएंगे. बस व्हाट इज़ माई रिक्वेस्ट, मतलब मेरी दरख्वास्त क्या है भागलपुर से कि बस मेरे लम्हों को बेइंतहा मोहब्बत से खुद में सहेज कर रख लेना. बस मेरे लम्हों को बेइंतहा मोहब्बत से खुद में सहेज कर रख लेना. मैं जहाँ कहीं भी इश्क लिखूं या कहूँ तुम भागलपुर समझ लेना. कहने को तो तुझसे बहुत दूर आ चला हूँ. तेरे दामन को छोड़ मैं नूर में समा चुका हूँ. मेरे हर सांस की दबी सियाहों पर बस तेरा ही नाम रहता है. मेरे हर सांस की दबी सियाहों पर बस तेरा ही नाम रहता है. और मुझे है खबर कि तेरे हर जर्रे में मैं कायम सा रहता हूँ. अल्फ मेरे घर की दीवारों को तुम मत अनजान समझ लेना. मेरे घर की दीवारों को तुम मत अनजान समझ लेना. मैं जहाँ कहीं भी इश्क लिखूं या कहूँ तुम भागलपुर समझ लेना. एंड अभी मैं थोड़ा सा भागलपुर का जो इतिहास रहा है, भागलपुर का जो पौराणिक इतिहास है या भागलपुर का जो समन्वय वर्तमान है, उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ. ढलती हुई शामों में तो तुम भी गुमनाम रहती हो. ढलती हुई शामों में तो तुम भी गुमनाम रहती हो.
आशिकी के किस्सों से तुम भी बदनाम रहती हो। भागलपुर में सिल्क बड़ा फेमस है, भागलपुर का सिल्क इंटरनेशनली फेमस है, तो उसके बारे में क्या कहता हूँ, उसके रेशम के धागों के बारे में, तो वो जरा सुनिएगा। अपने रेशम के धागों से सबको यूं बांधते चली जाती हो, अपने रेशम के धागों से सबको यूं बांधती चली जाती हो, क्या रखा है मजहब रंजिश में। मजहब रंजिश मीन्स द कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ रिलीजन्स, रिलीजियस थॉट के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। अपने रेशम के धागों से सबको यूं बांधते चली जाती हो, क्या रखा है मजहब रंजिश में, अपने इतिहास से ये भी सिखला जाती हो। भागलपुर में सबसे खूबसूरत चीज़ है विक्रमशिला, तो उसके बारे में क्या कहना है खबर मुझे कि विक्रमशिला का गुमान रखती हो, है खबर मुझे कि विक्रमशिला का गुमान रखती हो, ये भी इल्म है मुझको कि गौतम बुद्ध के चरणों का प्रमाण रखती हो। हर दुआ हर सांस में सब तेरा ही जिक्र करते हैं, इख्तियार कर लेना। हर दुआ हर सांस में सब तेरा ही जिक्र करते हैं, इख्तियार कर लेना। मैं जहाँ कहीं भी इश्क कहूँ या लिखूँ, तुम भागलपुर समझ लेना। तो थोड़ा सा आप कहीं भी शहर में रहते हैं तो आपके लोगों से जो इंटरेक्शन होते हैं, थोड़ा आसपास आप घूमते हैं और क्या सीजन्स के हिसाब से जो होता है उसके बारे में है। इस भागलपुर का सबसे फेमस स्पॉट है सैंडिस। अगर आपने किसी से भी मिलना है तो वो सबसे कॉमन स्पॉट है। तो सैंडिस से कचहरी तक मदमस्त चक्कर लगाना याद है, सैंडिस से कचहरी तक मदमस्त चक्कर लगाना याद है। वो बारिश के मौसम में तेरा ओढ़े हरा दुपट्टा लहराना भी याद है। सितारों के टिमटिमाहट से तेरी बढ़ती इनायत का तो हर लब पर जिक्र है। सितारों के टिमटिमाहट से तेरी बढ़ती इनायत का तो हर लब पर जिक्र है। तेरे दीवाने तो हैं हर जगह, भागलपुरी हर जगह है, तो तेरे दीवाने तो हैं हर जगह। तुझे मशहूरियत की क्या फिक्र है, हर चेहरे की मुस्कुराहट का वजूद बस तुमसे है। हर चेहरे के मुस्कुराहट का वजूद बस तुमसे है, ये जहन में रख लेना। मैं जहाँ कहीं भी इश्क लिखूं या कहूँ, तुम भागलपुर समझ लेना। तो अभी मैं इस कविता के अंतिम छंदों की तरफ बढ़ता जा रहा हूँ। तो ये आखिरी छंद सुनिएगा, तो है चलो अब चलता हूँ अपने दिल में मेरा इकरार रखना। चलो अब चलता हूँ अपने दिल में मेरा इकरार रखना, ख्याल रखना खुद का भी। तो भागलपुर हम सभी के लिए एक माँ जैसी है। तो हम कहते हैं ना कि माँ अपना ख्याल रखना, तो वही ख्याल रखना खुद का भी, अपने आवाम को भी बरकरार रखना। मेरा न जाने हर वक्त कैसे तुम बिन मुकम्मल हो पाएगा। मेरा न जाने हर वक्त कैसे तुम बिन मुकम्मल हो पाएगा। तेरे साए में वो बना बचपन अब धुंधला याद बनकर रह जाएगा। तेरे दुपट्टे के साए में वो बना बचपन अब धुंधला याद बनकर रह जाएगा। बातें तो हर रोज ना हो पाएंगे इस कदर। जिस तरह की दिल खोल की बातें हम किसी एक वक्त पे करते हैं, किसी एक व्यक्ति के साथ एक वक्त पे करते हैं, तो हम ये ज़रूरी नहीं कि हम हर बार ये ऐसे ही बातें हों। तो बातें तो हर रोज़ ना हो पाएंगे इस कदर, ये सोच कर मुझे खुद से दूर मत कर देना। मैं जहाँ कहीं भी इश्क लिखूं या कहूँ, तुम भागलपुर समझ लेना। मैं जहाँ कहीं भी इश्क लिखूं या कहूँ, तुम भागलपुर समझ लेना। तो ये मेरी कविता थी, एक तरह से कह सकते हैं आप मेरी संपूर्ण हृदय वंदना की है। जो कोई भी भागलपुरी अपने शहर को करता है, वो वंदना कोई भी योगी अपने योग के प्रति करता है, कोई भी धार्मिक व्यक्ति अपने धर्म के प्रति करता है। तो ये एक तरह से मेरा संपूर्ण समर्पण था, एक प्रार्थना के रूप में, एक कविता के रूप में एक मेरा समर्पण है उस स्थान को जो कि तिलका मांझी का प्रमाण रखता है, वो स्थान जो गौतम बुद्ध के चरणों का प्रमाण रखता है, वो स्थान जो अपने रेशम के धागों के कारण संपूर्ण विश्व में एक महत्व स्थान रखता है। तो ये एक तरह से हम सभी भागलपुरियों के तरफ से आप कह सकते हैं, सभी भागलपुरियों के बिहाफ पे मेरी एक तरह से वंदना, मेरी प्रार्थना है भागलपुर से, या मेरा समर्पण है भागलपुर को। तो यही है जो मेरी पोयम थी, मैंने काफ़ी जगह कहा भी है, लोगों ने पसंद भी किया है इसको। तो एक तरह से जैसे हम सभी हैं, तो हम सभी की ओर से ये एक वंदना है छोटी सी भागलपुर शहर को, समर्पण है छोटा सा मेरा। ये तो हमारे शहर के लिए एक पर्सनलाइज चन्ना मेरे यहाँ हो गया।
हाँ, एक तरह से कह सकते हैं छन्ना मेरे या हो गया, लेकिन ये है कि जो भाव हैं, जो कहते हैं, जो हम किसी से ये मोहब्बत वाली चीज़ है, ये एक तरह से कहिए तो भागलपुर का प्यार जो हमारे लिए वो ममत्व है, क्योंकि हम भागलपुर, हम जैसे कई और लोगों की माँ है। जैसे भारत माता है, वैसे भागलपुर भी हम सभी के लिए, कि हम उसी माँ के आंगन में, उसी माँ के दुपट्टे के नीचे पले हैं। हम सभी के लिए कभी ये कर्तव्य बनता है कि जितना दायित्व हमारा भारत माता की ओर है, उतना ही दायित्व हमारा भागलपुर की ओर भी है। इसके उत्थान, इसके उत्कर्ष का, इसके उत्थान का, इसके समन्वय का, इसके संरक्षण का, सबका दायित्व हमारे ऊपर आता है। तो हमें इसके साथ जितनी वफादारी से इन्होंने हमें पाला है, अपना पुत्र समझकर या अपने बच्चे समझकर, उन्हें अभी वही वक्त है कि हम उनको उतना ही लौटा पाए जितना हमें मिला है इनके साथ। तो यही बस भाव यही है, किसी भी भागलपुरी के लिए यही भाव है हृदय में, कि हम जो भी जिनसे भी दें, उनको उससे ज़्यादा लौटाने की कोशिश करें। और माँ का ऋण तो ऐसा ऋण है कि आप चुका नहीं सकते हैं, और स्थान का, यहाँ तक कि हम जिस सभ्यता से आते हैं उसमें यहाँ तक ये भी कहा गया है कि मातृभूमि स्वर्ग अपी गसति, मतलब मदरलैंड आर ग्रेटर देन हेवन। तो अब तुलना क्या ही करना इन चीज़ों की। सही बात, बहुत अच्छा था, तो बहुत मजा आ गया सुन के, जिस तरह से इस शहर की खूबसूरती को डिस्क्राइब किया है। हम चाहे जितनी भी दूर निकल जाए, हमारे रूट्स उसी जगह से जुड़े रहते हैं जहाँ हमने अपना बचपन बिताया है, जहाँ स्कूल का पहला प्यार, मतलब पहली प्यार की झपकी स्कूल की, और टीचर्स की थपकी मिली है, और हमारे लिए वो शहर भागलपुर है। तत्वबोध ने आज उन सारी यादों को ताजा कर दिया है। आई एम श्योर आप लोगों को भी, मतलब अपने अपने नॉस्टैल्जिया की गली में आप लोग भी पहुंच गए होंगे। थैंक यू तत्वबोध, थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस टुडे। वीडियो को एंड करने से पहले आप लोगों के बिहाफ पे एक चीज जरूर कहना चाहूंगा। श्योर। जैसा मैंने पहले भी कहा कि भागलपुर के उत्थान के लिए हमें ही आगे बढ़कर काम करना होगा, और जैसा कि हम सभी उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, तो मैं आपसे मेरी एक बड़ी हृदय मर्मस्पर्शी दरख्वास्त ये है कि अभी जो इन लोगों का जो प्लेटफॉर्म है, जो आशुदी ने और साक्षी दी ने मिलकर एक शुरुआत की है, भागलपुर के जितने भी लेखक हैं, जितने भी कवि हैं, जितने भी सिंगर्स हैं, उनको एक लेवल ऊपर ले जाने का, तो बस मेरी इतनी ही जैसे दरख्वास्त है कि आप इन लोगों का संपूर्ण साथ दीजिए, क्योंकि अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन का उत्थान कर रहे हैं, तो वो जो आपके शहर का उत्थान कर रहा हो, तो आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली शहर के उत्थान में अपना योगदान दे रहे हैं। तो जितने भी लोग इनके प्लेटफॉर्म को नहीं जानते हैं या जान रहे हैं, जो जानते हैं वो जो नहीं जानते उनके साथ शेयर कीजिए, उनके साथ इसको वीडियो को देखिए, उन्हें वीडियो के लिंक्स भेजिए। मैं नहीं कहता सिर्फ मेरे वीडियो का लिंक भेजिए, जितने भी वीडियो इस प्लेटफॉर्म पर आते हैं या जितने आ चुके हैं या जितने भविष्य में आएंगे, उन सभी को सबके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, ताकि वो लोग जान पाए कि भागलपुर इज नॉट जस्ट अ प्लेस, भागलपुर इज एन इमोशन, भागलपुर इज अ बंच ऑफ एन अमालगमेशन ऑफ टैलेंट्स एंड feelings and people who have uplifted themselves by their own standards। उनको ये जानना चाहिए कि भागलपुर वाली सर्वव्यापी है, सर्वसंपन्न है। तो इनके प्रोफाइल को जितना हम शेयर कर सकते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। इनके लिए भी ज़रूरी है क्योंकि भागलपुर को आगे लेकर के जा रहे हैं, और हमारे लिए भी ज़रूरी है क्योंकि अल्टीमेटली हम भी चाहते हैं कि भागलपुर सर्वश्रेष्ठ कोटि स्थान में गिना जाए। तो बस आखिरी दरख्वास्त यही है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या इस चैनल पे आने वाले भविष्य में जितने भी वीडियोस होंगी, जितने भी या तो कविताएं हों या हास्यास्पद कहानियां हों या जो भी कुछ कार्यक्रम इस चैनल पे आता है, तो हमारी बस यही दरख्वास्त है कि हमें इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रेम योगदान देकर इन्हें शीर्ष तक पहुंचाना है। थैंक यू सो मच तत्वबोध, really thank you so much, and thanks to everyone for joining with us. This was the second episode of Heard Unheard, co-powered by Lose Emotions. Please stay tuned for more such amazing content. Stay tuned, stay safe.